देखो मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे पूरा आ रहा है यू ओके। एक मिनट करो कि यहाँ सेटिंग में जाके, बेटा एक मिनट वेट करना मेरे लिए। मैं यस इसको मैम। हटा रही हूँ। सेटिंग्स में गई थी और एयरप्लेन मोड दिखाई नहीं दिया मुझे।
चलो देखो पढ़ते हैं क्या होता है। यहाँ तुम्हारा एसएसबी का सीएसबी फाइल भी नहीं आया, ये आया था पहले। क्या फालतू फालतू चीजें आ रहा है, मैं क्या करूं। टेंथ है, कॉपी एडमिट लिंक क्या है ये। स्नेहा नहीं हो रहा ठीक। मैम मैम आप स्क्रीन मैम शेयर आप कर ना दीजिए तो हमें दिख जाएगा, मैम तो हम आप आपको क्या? बताते जाएं। आप यस स्क्रीन मैम। शेयर कर दीजिए। मैम नीचे एक ऑप्शन होगा प्रेजेंट नाउ, ऐसा लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। प्रेजेंट नाउ तो वो तो कर दिया, वो हो रहा है इसलिए। ज्वाइन नाउ, प्रेजेंट नाउ नहीं, को ज्वाइन नाउ। मैम आप प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करेंगी तो हमें आपकी स्क्रीन दिखेगी, तो हम आपको इंस्ट्रक्ट कर सकेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं, इसलिए। कोई बात नहीं, अभी रहना दो, पढ़ते हैं, देखते हैं ओके। बाद में क्या होता है। चलिए रिकॉर्डिंग चालू से इतना सारा बात करें तो बात जा रहा है। एक बात बताओ, स्वप्ना's problem we have done. Okay, we have done festival season and Salim. In this case, Salim claims Salim obtains credit to meet the working capital needs of production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production. तुम लोग आ नहीं सकते ना मेरा घर, नहीं तो एक बार आके कर दो तो सही हो जाता है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सीएसबी फाइल आया था, अभी नहीं है सीएसबी फाइल। आ गया, आ गया, चलो। Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land. She takes a loan. How much land Lakshmi had? acres, 3 acres. Eh? 2 hectares. Lakshmi had unirrigated land. How many acres? 2 hectares. 2 hectares, acres नहीं, 2 hectares. चलो. Groundnut on her 3 acres of land. Groundnut is sown in which season? Now, what kind of crops are sown? Kharif. Apple. Kharif or Kharif. Rabi? Kharif. कौन बोल रहा है खरीफ पीछे से? And now they are growing, now they are sowing these things. Groundnut. Groundnut, भुट्टा, मतलब मक्का जो है, भुट्टा और आपका सोयाबीन, all these things. These are all खरीफ crops. ये बेटा आप फटाफट आंसर दो, इसे तो टेस्ट में क्या करोगे? Swapna, a small farmer, grows groundnut on a 3 acres of land. She takes a loan from the moneylender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pests and the crop fails. Though Swapna sprays her crops with expensive pesticides, it makes little difference. She is unable to repay the moneylender, and the debt means also credit, loan, grows over the year into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. See, it is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in debt. उसने ऋण की चक्र में फंस गई, चक्रव्यूह में. She has to sell a part of the land to pay off the debt. उसको क्या करा, वो ऋण की चक्रव्यूह में फंस गई और उसको क्या है, उसको अपना लोन क्लियर करने के लिए what she has to do, she had to sell a part of her land, paid only 3 hectares of land, acres में. In rural areas, the main demand for credit is for crop production. गांव में लोग खेतीबाड़ी करने के लिए ही लोन लेते हैं, नहीं तो और किस लिए लेंगे. क्लास का होनहार बच्चा 10 बार बोल दिया, दोनों, एक दिव्यांशी एक अर्षित जैन, दोनों का सेम आना है.
Crop production involves considerable costs on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and then they sell the crop. Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the income from farming. ये जो लोन है, लोन लेते हैं वो लोग खेती बाड़ी करने के लिए, मेरा गिराज भी लेता है, राघवगढ़ से जाके लाता है और उनको वापस भी करता है. थैंक यू स्नेहा एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी. In Swapna's case, the failure of the crop made loan repayment impossible. She had to sell part of the land to repay the loan. ये बड़ा दुखदाई है. अपना जमीन बेच के लोन चुकाना ये बहुत बड़ी दुखदाई बात है. Credit, instead of helping Swapna improve her earnings, left her worse off. इस स्थिति में क्या सलीम को तो हेल्प हो गया, स्टडी here ना, लक्ष्मी को भी हेल्प हुआ, उसको लोन मिलता नहीं, ऐसे सोचा उन्होंने. अगर इरिगेशन हो जाएगा तो उसके खेत में पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा तो दूसरे लोग काम करेंगे. यहाँ पे क्या है, सोना का कंडीशन. This is an example of what is commonly called debt trap. Now the question, what do you understand by debt trap? समझ में आ रहा मेरी बात? तो आपको डेट ट्रैप होना चाहिए. कैसे आप नहीं दे पाए? स्वप्ना तो खेती बाड़ी के लिए लोन लिया था और उसने she could not, because of the pest, she could not do pay, and one after another season she got into the trap because she could not give. So finally what she had to do, she had to sell off the part of her debt. So now this is called debt trap. Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. This situation is very painful for Swapna. Do you think so? एक साल नहीं दे पाई तो उसका बढ़ गया, फिर बढ़ता गया. आप इसको क्या बोलते हैं इन इंग्लिश? हम कहते हैं चक्रवर्ती सूद. आप लोग क्या बोलते हो? कंपाउंड इंटरेस्ट. चक्रवर्ती मतलब into and into. कंपाउंड इंटरेस्ट. तुम लोग इसको Compound. मैच करते हो? Compound interest. Compound interest. Compound interest. Compound interest. यस मैम. COMPOUND. अच्छा, compound. Yes, ma'am. हम लोग चक्रवर्ती सूद बोलते हैं. मैंने तो उड़िया मीडियम में पढ़ा था, चक्रवर्ती सूद का बढ़ता गया. Every time into last moment. What happens if you are not in a position to repay your loan? What will happen? The property will be auction. नीलाम हो जाता है बिल्कुल. बड़ी दुखदाई, very painful situation. In one situation, credit helps to increase earnings, and therefore the person is better off than before. In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not, therefore depends on the risks in the situation and whether there is some support in case of loss. जिसके ऊपर हो गया काम वो बढ़िया काम करता रहता है और अपना लोन रिपे करता रहता है EMI. और जो नहीं दे पाया और डेट ट्रैप में सब छिन गया, उससे सरकार छिन देगी बैंक. नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट ऐसा नहीं रहता, उसमें टर्म लगाते हैं. एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट? जो उधार ले रहा है उसका क्या कंडीशन रहता है? श्रेया, व्हाट मेक्स यू लाफ? एम आई टॉकिंग नॉनसेंस? मैम श्रमित परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा. मैम मैं उसको बोला कि क्या
मैम मेरे को बाहर जाना है वो बुक लाने के लिए, तो फिर श्रमिक मैं तुम्हारी घरेलू बात क्यों सुनूं? बाहर जाना बाहर जाना है, क्लास चल रहा है, तुमको जो करना है करो। व्हाई आर यू टेलिंग मी ऑल दीज थिंग्स? Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of principal. प्रिंसिपल तो देना पड़ेगा आपको। प्रिंसिपल मतलब जानते हो, आपने 1000 रुपया कर्जा लिया है, उसका इंटरेस्ट 100 रुपया देना है, ठीक है? प्रिंसिपल मनी क्या हुआ? दैट 1000 रुपीज। यू टू पे दैट 1000 रुपीज प्लस द इंटरेस्ट। Amount plus interest. है? Amount plus interest is equals to. Wait. अरे that is what is the term and conditions that you have to do along with the repayment of the principal. In addition, lenders may demand collateral. That is security. आपकी स्कूल में एडमिशन है और आपको चाहे बैंक रेल के बच्चे हो चाहे बाहर के बच्चे, you have deposit some security money. When we leave the school, money will be returned to you. कुछ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, डेस्क वगैरह। Against loans, collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, भैंस, गाय वगैरह, livestock, deposits with banks, and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. सब कुछ रहता बैंक के पास, बैंक अपने आप ले लेगा तुम्हारा पैसा सब। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or for collateral to obtain payment. वो जो collateral सिक्योरिटी के तौर पर आपने रखा है, वो भी बेच देगा जो पैसा दिया है, उसको राइट है, क्योंकि उसको अपना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। In case of bank will sell. Livestock are some common examples of collateral used for borrowing. आजकल श्रमिक को पढ़ने में इच्छा, इसलिए मैंने उसे बात नहीं करती। कोलाटरल मतलब कुछ रखो। एक हमारे उधर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्गेज, हमारे उधर बोलते हैं बंधक। एक आदमी एक दिन हमारे घर में आया, भूख के मारे बेचारा, उसके बच्चे थे, मम्मी को बोला कहाँ से की बर्तन लाया बड़ा, वो भी शायद पड़ा होगा हमारे घर में, वो लेने ही नहीं आया हुआ। मेरे मम्मी को बोला मुझे थोड़ा दे दो, बहुत झगड़ता था हमारे साथ, घर के सामने ही रहता था। रहता है क्या? हाँ क्या रहता है, हम तो छोड़ के आगे वो ही है, कहाँ से की बर्तन लेके आया बड़ा। और मेरे मम्मी को बोला ये रख लो और जो देना है दो। फिर मेरे मम्मी ने कुछ चावल दे दिया, मेरे मम्मी ने बोला चावल ही दिया, जाओ वो पका के खाओ। मेरे मम्मी बोला इसका जरूरत नहीं, नहीं मैं तो ऐसे नहीं लूंगा, वो कभी आया ही नहीं हुआ। दैट इज देयर लाइंग इन आवर हाउस। मेरे घर के सामने वाले क्या उससे मोर्गेज लेगा, और वो बंधक के रूप में कांसे की बर्तन रखेगा, स्टील बर्तन कोई नहीं रखेगा ना। हाउस देखा हाउस Mega has taken a loan of Rs 5 lakhs from the bank to purchase a house. The annual interest rate on the loan is 12% and the loan is to be repaid 10 years in monthly installments. Mega had to submit to the bank documents showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. The bank retained as collateral the papers of the new house, which will be returned to Megha only when she repays the entire loan with interest. Fill in the blanks है, लोन अमाउंट कितना है, मैंने कितना लिया, how much, what is the amount that Megha taken as a loan? 5 lakhs. 5 lakhs. 5 lakhs. 5 lakhs. 5 lakhs. Right, 5 lakhs. Then duration of loan? 10 years. 10 years. 10 years. Yeah. Right. 10 years. कौन बोल रहा है ये के पीछे? Employment records, salary. ठीक है?
12%. 12%. 5%. Monthly record mode of payment. Interest rate is 12%. Mode of repayment is monthly installment EMI. EMI. Collateral papers new house. Did you understand that? ऐसे जो उसका भी ऑफ करा था ना, उसमें क्या लिखता है पता है? कल मैम मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है? EMI. पैसे वापस कैसे चुकाएंगे? हम लोग देते हैं EMI पैसा। तुमको देती आप मेरे में करोगे मैम कोलैटरेट में क्या लिखना था? पेपर्स ऑफ न्यू हाउस। Papers of पेपर्स ऑफ द न्यू उम्मीद है बैंक के पास। आपका पूरा घर आपका नहीं है, वो बैंक का ही घर है। मैं जो इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। तो तुम पिछली चर्चा तो पाते हो ना, उसमें तो लिखा सो एंड सो कमिंग गो टू द क्लास, वो कंप्यूटर पूरा रिकॉर्ड रख रहा है। दिस इज अ गुड रिकॉर्ड ऑफ योर। ये देखो अनुष्का भी गई थी इस दृष्टि तो मैं क्यों मेरा नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। आउट एंड कमिंग अनुष्का को लिख रहा हूँ, रिकॉर्ड रख रहा है। उसको कौन सा फाइल बोलते हैं? कल निकला था, क्या मुश्किल हुआ मुझे उसको निकालने में। अभी भी नहीं हटाओ, पूरा रिकॉर्ड है उसमें, पूरा दिखा है। Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called the term. यहाँ लिखा हुआ इंटरेस्ट रेट, कोलाटरल, ये टर्म मतलब कंडीशन है। इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%. कोलाटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंटेशन मीन द एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड द सैलरी। देन and the mode of repayment क्या है? monthly EMI. what is called terms of credit. in the question asked you terms of credit, you have to write all this. इसीलिए बॉक्स में करवाया उसने। ये कोई मजाक नहीं है, मतलब कोई फन नहीं है। the terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. they may vary depending on the nature of the lender and the borrower. The next section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangements. Let's work this out. Everything you have to work out. जो in between जो in text चलिए variety of credit arrangements, अलग अलग देखो स्नेहा ना उसका रिकॉर्ड हो गया हुआ। ये मत सोचना कि उसको कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा है। मैंने कल देखा इसलिए आज आपको बता रही हूँ। नेटवर्क जाता है इसीलिए शायद से दिखता नहीं है, ऑन ही था मैम। अरे स्नेहा मेरी बात सुनो, उसमें रिकॉर्ड रख रहा है वो। यस मैम। नेटवर्क कहाँ जा रहा है? वो तो तुम्हारा तो कैमरा में तुम पाओगे, इसमें नेटवर्क जाने का क्या मतलब? नहीं मैम, नेटवर्क जाते हैं तो कैमरा अपने आप ऑफ हो जाता है, फिर वापस ऑन करना पड़ता है। अच्छा, मैं क्या करूँ? उसमें लिखा हुआ है, मैं बच्चों का नाम तो नहीं बता सकती, याद नहीं है, बट मैंने पढ़ा। कॉन्स्टेंटली लिविंग एंड कमिंग, वैरायटी ऑफ क्रेडिट, ये सब रिकॉर्ड में आ गया, सब पालीवाल भैया के पास। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, एग्जांपल ऑफ अ विलेज। रोहित एंड रंजन हैज फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। दे वर ईगर। ये कौन सा पौधा है? फोटो सामने जड़ समझ जो है। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? Yam. What is it? This is potato plant. आलू। हाँ, आलू का निकाल, कितना बड़ा आलू दिख रहा है ना यहाँ पे नीचे। Oh. Rohit and Ranjan had finished reading
about the terms of credit in class. They were eager to know the various credit arrangements that existed in their area. Who were the people who provided credit? Who were the borrowers? What were the terms of credit? They decided to talk to some people in their village. Read what they record. We'll read. 15 November 2006. We headed directly for the fields where most farmers and laborers would be working at this time of the day. The fields are planted with potato crops. We first meet Shamal, a small farmer in Sonpur. Sonpur is a place in Bihar. A small irrigated village. Shamal tells us that every season he needs loans for cultivation on his 1.5 acres of land, not hectares. Till a few years back, he would borrow money from the village moneylender at an interest rate of 5% per month. बहुत ज़्यादा है. For the last few years, Shamal has been borrowing from an agricultural trader in the village at an interest rate of 3% per month. At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs on credit, which is to be repaid when the crops are ready for harvest. Besides the interest charge on the loan, the trader also makes the farmers promise to sell the crop to him. This way, the trader can ensure that the money is repaid promptly. Also, since the crop prices are low after the harvest, जब नया नया आलू हार्वेस्ट होता है तो इसका प्राइस, कोई भी क्रॉप उसका प्राइस लेस होता है. अभी प्याज का दाम कितना, 15 रुपया किलो. और प्याज जो है अभी जैसे टाइम जाते जाएगा ऐसे प्याज का दाम बढ़ेगा, पर प्याज सड़ भी रहा है. मैं तो रोज फेंकती हूँ, बड़े बड़े प्याज खरीदा मैंने, मतलब मैं इतना कुचर नहीं काट सकती बैठ के. अब एक प्याज बीच में से खराब हो गया. आलू भी 2 रुपया किलो पहले होता था, 2 रुपये किलो. टमाटर 2 रुपया किलो पहले इसी बड़ी मार्केट से मैंने खरीदा. अभी तो 80 रुपया किलो, 60 रुपया किलो. Also, since the crop prices are low, after the harvest, the trader is able to make profit from buying the crop at a low price from the farmers and then selling it later when the price is risen. कैसे करता है वो? इसके लिए उसको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है. आजकल सब पूरा नया आलू जो है सब कोल्ड स्टोरेज में चला गया. We next meet Arun, who is supervising the work of one farm laborer. अरुण तो सुपरवाइजर है और श्यामल मालिक है. अरुण है 7 acres of land. अरे ज्यादा है इसके पास, 7 acres. इसका 1.5 है. Arun has 7 acres of land. He is one of the few persons in Sonpur who receive bank loan for cultivation. The interest rate on the loan is 8.5% per annum. ये पर मंथ लेता था 5%. श्यामल का 3% भी है और इसका साल में 8.5. ये ठीक है, बैंक से लेता है ना. And can be repaid any time in the next 3 years. तुम जानते हो अदरक को कैसे रखते हैं? How to preserve अदरक? खूब मिट्टी को खूब मिट्टी में गड्ढा खोद देते हैं, रेत भी डालते हैं और उसके अंदर बिछा के उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देते. खुले में नहीं, खुले में तो सनरेज क्या बिछाते हैं? पानी आएगा तो पौधा उग जाएगा. हेमा मैडम तो कहती है गेहूं रखती है प्याज डाल के, उसके अंदर प्याज डालती है साबुत हो उसके अंदर गेहूं में. सबको मालूम है, जो काम करते हैं उनको मालूम है. मैं तो Arun plans to repay the loan after harvest by selling a part of the crop. He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt.
कोल्ड स्टोरेज में जो रखने के लिए उसमें जो रखा उसका भंडारण के लिए स्टोरेज के लिए उसका एक रसीद मिला, भाई तुमने 1 क्विंटल आलू रखा है इधर, तो उसको बैंक में दिखाएगा तो बैंक उसको लोन देगा, तो उसका कोलाटरल है। अप्लाई फॉर ए फ्रेश लोन, मैंने पहले भी बोला, मेरे क्लास में के साथ पढ़िया था, अभी 12th में आ गया उमराज में, उसके घर में वो लोगों ने कोल्ड स्टोरेज रखा, दे आर ने लॉट। दूसरे लोगों में व्हाट डू डू, ये जो विलेज पालमपुर पढ़ाती थी तो पूछा मैंने, कह रहा हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है। मतलब व्हाट डू यू डू विद द कोल्ड स्टोरेज, व्हाट डू यू कीप, कह रहा मैम हम कोरिएंडर रखते हैं, उसका कलर खराब नहीं होता। मैं यहाँ पे मंडी न्यूज, मंडी समाचार दिखाता है डीडी किसान में, मुझे अच्छा लगता है देखना, और मंडियों में कैसे गुजरते बैग के अंदर, बोरी के अंदर उनका अपना चीज फिर निकालते, पूरा गिरा देते चीजें। थ्रू बैंक दे डू द पेमेंट एंड ऑल। कोटा की मंडी सबसे बड़ा मंडी है मालूम है इस एरिया में, और कुमराज का मंडी तो एशिया में फर्स्ट है, because for the reason that the coriander, ये राधिका राठी पड़ती थी, उन लोगों के घर में सब दाल मिल है, दाल का मिल क्या है, फिर दाल पॉलिश करते हैं वो सब बहुत रिच पीपल है, दे आर वेरी रिच पीपल। किसी के पास गहने की दुकान है, अदिति के पास तो, अदिति कासट के पास तो गहने की दुकान, मैं गई वहां भी देयर, इसलिए हम कहीं, and they are as good students। मैं यश को बोलती, यश जितने कासट पढ़ के गए कोई भी बुद्धू नहीं, तू ही खाली अकेला बुद्धू का, वो भी 12th पास करके गया, कुछ पढ़ रहा है। The bank offers the facility to farmers who have taken crop loan from them. Rama is working in the neighboring field. She works as an agricultural laborer। देखो औरतें आलू खोद रहे हैं ऐसे ही। There are several months in the year when Rama has no work। जब खेतों में काम नहीं हो रहा तो रमा जाके क्या करेगी? And needs credit to meet the daily expenses। Expenses on sudden illness or functions in the family are also made through loans। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है सुधा के बारे में, रामलिंगम क्लास 7 की एसपीएल बुक में आपने को पढ़ा है। वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता रामलिंगम, तो भी उसी के पास जाती है, क्यों? वहीं से लोन मिल जाता और बदले में लिखवा लेता। स्वप्ना को भी लिखवाया था, जितने कॉटन होगा सब मुझे बेचोगे 7th क्लास में। ये जो स्वप्ना नाम है 10th क्लास तक चालू है, देखो अभी स्वप्ना के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेसेस और फंक्शंस in the family are also made through loans। Rama has to depend on her employer, a medium landowner in Sonpur, for credit। The landowner charges an interest rate of 5% per month। Rama repays the money by working for the landowner। Most of the time, Rama has to take a fresh loan before the previous loan has been repaid। At present, she owes the लैंड ओनर RS 5000। अभी कितना लैंड ओनर को उसको 5000 रुपया देना ऑलरेडी ले चुकी है। दो द लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट हर वेल, शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस ही कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड। रमा टेल्स, यही सुधा की कहानी। Rama tells us that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner employees। Loans from cooperatives। Besides banks, the other major source of crop cheap credit in rural areas are the, आंखों में पानी आ गया, cooperative are the cooperative societies or cooperatives। Members of a cooperative pool their resources for cooperation in certain areas।
वो क्या करते हैं, दे पूल सम मनी, जैसे यहाँ गेल में है अपना दुकान, ऐसे ही सम मेंबर्स दे इन्वेस्ट सम मनी, दैट इज कॉल्ड पूलिंग द मनी. एंड व्हाट दे डू, there are several types of cooperatives possible, such as farmers cooperatives, weavers cooperatives, industrial workers cooperatives, etc. Research cooperative functions in a village not very far away from Sonpur. My brother worked and get retirement from the cooperative bank. First he joined as a क्या बोलते हैं उसको, auditor, cooperative society का auditor. Then he became the bank officer and he got retired. And then my father was also cooperative में, वो तो AR थे, assistant register थे बैंक की, ओडिशा कोऑपरेटिव सोसाइटी. It is government. Research cooperative functions in a village not very far away from Sonpur. It has 2,300 farmers as members. It accepts deposits from its members. उसमें एक ब्रांच था कोऑपरेटिव बैंक में, महिला ग्राम्य बैंक, तो उसमें मैंने भी डाला था कुछ पैसा. इतने सड़े चेक्स थे उनके पास, उसमें सारे वर्कर महिला ही है. 600-700 रुपया था मेरा, ज्यादा पैसा थोड़ी था, तो मेरे पास पैसा कहाँ है. With these deposits as collateral, the cooperative was obtained a large loan from the bank. These funds are used to provide loans to members. Once these are like SIG. You will be studying right. थोड़ी देर में आप पढ़ोगे. सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला आंगनबाड़ी में होता है, वो सब गांव में लोग करते हैं. Cooperative has obtained a large loan from the bank. These funds are used to provide loans to members. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. जब आप एक बार लोन लिया कोऑपरेटिव से, सोसाइटी से, फिर आपको वो पेमेंट जब आपने कर दिया, सारा लोन क्लियर किया, आपको दूसरा लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. Because you have to show your sincerity and honesty to that cooperative society. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. This cooperative provides loans for the purchase of agricultural implements, loans for cultivation and agricultural trade, fishery loans, loans for construction of houses, and for a variety of other expenses. लोन्स को अगर हम लोन की तरह यूज करें ना, तब हमको कोई नुकसान नहीं है. जिस पर्पस के लिए हमने लोन लिया, उसी पर्पस में यूज किया. नहीं ले आए 2 दिन बाद खा पी के उड़ा दिया पैसा, दे खड़े रास्ते में, बहुत मुश्किल है. ना फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, ये तो लिख लो, ये परमानेंट पूछता है. जैसे इधर मैंने एक पूछा था पहले, वो जो ग्राफ था पाई चार्ट, उसमें भी है इधर. पेज नंबर 63 नहीं, 63 तो आ गया. नहीं आ गया. It will come out. We have been farmer sector loan, rural household, so यही है. दूसरा फोटो आ गया. We have seen farmer sector credit in India. We have seen, आपने वहां पढ़ा था, in economic activity there are 3 sectors, primary, secondary and tertiary. अभी देखो formal sector credit in India. We have seen in the above examples that people obtain loans from various sources. The various types, मुझे टाइम बताना बेटा, 241 हो गया, हम थोड़ा सा और पढ़ा. The various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. Among the former are loans from banks and cooperatives. The informal lenders include money lenders, traders. Informal है ये, formal बैंक है, ध्यान रखना. Among the former are loans from banks and cooperatives. The informal lenders include money lenders, traders, employers, relatives and friends,
एक्सेट्रा, यही वाला ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये कुछ इसको दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ खत्म करेंगे क्लास, so that the other children also come and join the class. Okay. ओम शांति शांति। नेहा तुम लोग बिल्कुल बाहर नहीं जाते हो ना? नहीं जाते? नहीं, पहले जैसे तुम यहाँ साइकिल में आते थे वो नहीं आते? नहीं। खाली फेज 1 में? यस कब मैम। तक है ये ऑर्डर कब तक है? मैम अभी तक तो पता नहीं है, अभी वहाँ जो 8 लोग गए हैं वो जब आ जाएंगे तभी खुलेगा। एक और आदमी हो गया, 9 हो गया। हाँ 9 हो गया। कहाँ, यहीं से? हाँ वो एक डॉक्टर है यहाँ पे, उन्हें हो गया है। कैसे? वो जयपुर गए थे टेस्ट कराने। हैं? वो जयपुर गए थे टेस्ट कराने। ये जयपुर क्यों जा रहे लोग? पता नहीं मैम। पता नहीं, स्कूल खोलने का भी बातचीत चल रहा है, बड़ी लिस्ट आया है, सब लोग, सब स्टेट वाले बोल रहे हैं। समय बदलेगा शायद। चलो मैं इसको ना पहले करती हूँ, पहले इसको कर लेती हूँ। 28 हो गए हमारा। ओके, साई राम एंड बाय। मैम रिकॉर्डिंग मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। गई मैम।